Now we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 4 quick revision. देखो अगर मैं चैप्टर 4 की कंसेप्ट की बात करता हूँ तो वन ऑफ द कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डेटरमिनेंट्स. हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डेटरमिनेंट्स. इसके लिए हमने कंसेप्ट जो स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था? अ ट्राइंगल whose vertices are, let vertex A coordinates are x1 y1, vertex B coordinates are x2 y2, and vertex C coordinates are x3 y3. Means this is the triangle. Vertex A having coordinates x1 y1, vertex B having coordinate x2 y2, and vertex C having coordinate x3 y3. Then area of triangle will be equal to half determinant x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. राइट. और अगर आपका ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये 0 के इक्वल आता है, इट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट. इज इट क्लियर? हाँ जी भैया. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड. नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने इस चैप्टर में स्टडी किया था दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix, first of all, both are square matrix, is said to be a singular matrix if its determinant is 0. अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमने मैट्रिक्स में समझा था, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डेटरमिनेंट 0 होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. और किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. जहाँ डाउट होगा वो हम आइकॉन करके हैंड वेव कर देते. नेक्स्ट कंसेप्ट इज invertible matrices, that is inverse of a matrix. A matrix B is said to be inverse of a matrix A if and only if AB is equal to BA is equal to Y. It is denoted by A inverse. Or how to find inverse of a matrix? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अब यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डेटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपका वो 0 के इक्वल ना हो. इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका? नॉट इक्वल. B is an inverse of A, then A is also an inverse of B. Means AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. This is also the problem. Clear हो गया? First of all, for inverse of a matrix has to be a non-singular matrix. That is, determinant should not be equal to 0. If it's a singular matrix, then determinant is equal to 0. In that case, A inverse does not exist. A inverse आपका exist नहीं करेगा. और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है? टू हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है? 3 इक्वेशंस होती हैं, लाइक a1x b1y plus c1z equal to d1. That the second equation be a2x plus b2y plus c2z equal to d2. And the third equation be a3x plus b3y plus c3z equal to d3. मैट्रिक्स मेथड की जो इक्वेशन होती है दैट इज ax equal to b. ax equal to b, where x is the variable of the equation, that it be x, y, z. A is the coefficient, that is coefficient of x a1, b1, and coefficient of z c1. Second equation a2, b2, c2. Third equation a3, b3, c3. And b is the constant of, that is d1, d2, and what is b? Constant of equation. What is a? Coefficient of variables of equation. First equation coefficient, second equation coefficient, and third equation coefficient. And what is capital X? The variable
of the three equations, that is x, y, and z. So ax equal to b means x is equal to a inverse b. So first of all, we have to find a inverse. How to find a inverse? 1 upon determinant of a into adjoint of a. 1 of determinant of a into adjoint of a, right? Now let's discuss some important relation. Some important relations are determinant AB is equal to determinant A into determinant of B. Transpose of A inverse is equal to A transpose inverse. A inverse inverse is equal to A. Determinant Ka, K means constant, is equal to K raised to power n and is the order into determinant of A. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ. एमसीक्यू में इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं. Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. A inverse transpose is equal to A transpose inverse. A inverse inverse is equal to A. Determinant of Ka is equal to K raised to power n, where n is the order into determinant of A. Determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. And then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into Y. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए. ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज. And then 4n square matrix A. There exists an identity matrix of same order such that AI is equal to IA is equal to A. AI is equal to IA is equal to A. तो ये आपके सारे कंसेप्ट थे. If you have any doubt, you can ask me. If it's clear, then thumbs up. भैया एक बार प्रॉपर्टीज वाला दिखा देना. हाँ, प्रॉपर्टीज वाला मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डेटरमिनेंट ऑफ बी. दैट आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, और क्वेश्चन में कहा गया डेटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करो. यू विल यूज दिस प्रॉपर्टी. ए इनवर्स ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल होता है. ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए डेटरमिनेंट ऑफ के. ये भी बहुत यूज होता है. डेटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन. एन मीन्स जो ऑर्डर होगा इनटू डेटरमिनेंट ऑफ ए. एंड अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1, where n is the order of a matrix. Order of a determinant, you can say that. A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. ये आप प्रूव भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. That A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I. And then for any square matrix with determinant square matrix ही होता है. For any square matrix A, there exists an identity matrix of same order such that AI is equal to IA is equal to Y. Is it clear? हाँ जी भैया. ठीक है. और थोड़ा सा एडजॉइंट और माइनर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. लेट दिस बी द मैट्रिसेस 1 2 3 4. मैं जैसे आपको माइनर फाइंड करना है. तो माइनर मीन्स M11 M12 M21 M22. तो माइनर कैसे फाइंड करोगे? M11 में क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 4. M12 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज 3. M21 क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2. M22 क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज. कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं? कोफैक्टर में क्या होता है? कोफैक्टर विल बी इक्वल टू लाइक C11 विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 है 1 + 1 इंटू M11. तो -1 रेज टू पावर 2. बेसिकली ये इवन पोजीशन है. कैसे पता चला? 1 + 1 2 होगा, इवन पोजीशन है. 1 + 2 3, ये ऑड पोजीशन है. 2 + 1 3, दैट इज ऑड पोजीशन. 2 + 2 4, दैट इज इवन पोजीशन. तो कुछ नहीं करना, जो इवन पोजीशन वाले हैं वो तो जो माइनर की वैल्यू वही कोफैक्टर होगा, दैट इज 4. जहाँ ऑड पोजीशन है वहाँ साइन चेंज हो जाएगा.
जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। 2 1 ऑड पोजिशन है तो क्या हो जाएगा आपका -2, और 2 2 क्या हो जाएगा इवन पोजिशन है तो एज इट इज माइनर की वैल्यू के इक्वल होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, जो आपका को फैक्टर है दैट इज C11 C12, 1 की सीरीज फिर 2 की सीरीज 2 1 2, ऐसे अगर 3/3 होगा तो C11 क्या हो गया आपका 4, C12 क्या हो गया -3, फिर हो गया -2 और 1। इज इट क्लियर एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? माइनर और एडजॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये आपके सारे कंसेप्ट हैं जो चैप्टर 4 में आपके यूज होंगे, स्पेशली एमसीक्यूज में। एमसीक्यू मैं आपको अभी शेयर करूंगा, ठीक है, वो आप अभी प्रैक्टिस करो, फिर जो भी उसका एनालिसिस है फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो माइनर वाला कंसेप्ट फिर से बताया था, देखो 3/3 का केस है आपका, ठीक है। तो 3/3 वाले केस में किस तरह से माइनर और को फैक्टर निकालोगे ये मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वन 1 2 0 0 2 1 1 2 0, ऐसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। मुझे इसके माइनर निकालने, अब जितने एलिमेंट्स है उतने माइनर होंगे आपके। मीन्स M11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, वी आर लेफ्ट विथ 4 एलिमेंट्स 2 2 1 0 2 2 1 0। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो 0 1 1 0 0 1 1 0। फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 0 1 2 2, ठीक है। अब कैसे आएगा आंसर आपका, M11 क्या होगा आपका 2 × 0 दैट इज 0 -2 1 2, राइट। तो ये हो गया आपका -2। ऐसे M12 क्या होगा आपका 0 × 0 दैट इज 0 -1 × 1 -1 दैट इज -1। ऐसे M13 क्या होगा आपका 0 × 2 0 -1 × 2 -2। अब अगर यही मैं को फैक्टर में बोलूँ तो देखो 1 + 1 ये आपकी इवन पोजीशन है, 1 + 2 ये आपकी ऑड पोजीशन है, 1 + 3 इवन पोजीशन है। तो को फैक्टर क्या होंगे आपके, इवन में तो एज इट इज ही आ जाएगा -2, ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इवन में क्या हो जाएगा आपका एज इट इज -2। ऐसे देखो अगर आपको M21 फाइंड करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके 2 × 0 दैट इज 0 -2 × 0 0, तो ये आ गया आपका 0। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, 4 एलिमेंट्स हैं 1 × 0 0 -1 × 0 0। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × 2 2 -1 × 2 2, तो ये भी देखो 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो को फैक्टर्स में मान लो अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये आता आपका 3, ये आता आपका 2 और ये आता आपका -5, तब आप क्या करते हैं 2 + 1 क्या है ऑड पोजीशन, तो को फैक्टर में साइन चेंज हो जाता है, ये -3 हो जाता है। 2 + 2 4 इवन पोजीशन है, को फैक्टर आपका एज इट इज यही आता है। C23 2 + 3 5 ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके भैया। एडजॉइंट में आप कैसे लिखते हो, एडजॉइंट में आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे तो पहले 1 की सीरीज दैट इज C11 C12 C13, फिर 2 की सीरीज C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33, बस ऐसे याद रखो इसको, 1 सीरीज 2 ओके सीरीज भैया। 3 सीरीज। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया।